ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने क्या किया था? वी हैड डिस्कस्ड विद द टॉपिक फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। हमने सेपरेशन टेक्निक्स की शुरुआत कर ली थी। हमने सेडिमेंटेशन टेक्निक को डिटेल में पढ़ा था, दैट व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर आर टू बी सेडिमेंटेड। ओके, then we had read about filtration. Filtration can be taken place along with sedimentation or without sedimentation, but sedimentation makes the process of filtration easy. Okay, so now मैंने आपको एक चीज़ बोली थी that if we are separating out the mixture of calcium carbonate and water, then let us solve a question related to it. That question is, if we are separating the mixture of calcium carbonate and water, means the suspension that was formed after reaction of lime water and carbon dioxide. So what is the residue and the filtrate respectively in this case? What is the residue and filtrate respectively in this case? So students, let us come back to this, that residue are the particles that are stuck in the filter paper and filtrate is the one which passes out from the filter paper. So in this case, as we know, the sediments or the residue would be the calcium carbonate precipitates that are stuck in the filter paper. So let us write the answer as, after performing the activity, the experiment, we can observe that the calcium carbonate particles are left in the filter paper and the water moves from the filter paper and reaches the beaker. Thus, CaCO3 particles are the residue and the water is the filtrate. As CaCO3 particles are the residue and the water is the filtrate. Okay, so that was all about the question related to filtration as well as sedimentation. स्टूडेंट्स देखो, जब भी आप पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो साइंस में, तो आप प्रैक्टिकली सोचा करो. अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड देन आई एम लिंकिंग द थिंग्स व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ टू बी हैपन, तो कुछ भी करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. जैसे कि दिस क्वेश्चन, द मिक्सचर ऑफ calcium carbonate and water, the reaction between lime water and carbon dioxide gas passing through it. ठीक है. Now the next thing is decantation.
what is decantation? What is ओके सो देखो मेरे पास मैंने जब सेडिमेंटेशन की टेक्निक की है तो सेडिमेंटेशन की टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद जो मेरे पास बचा है वो क्या है या सेडिमेंटेशन की टेक्निक करने के बाद मेरे पास सेडिमेंट्स हैं जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर वाली साइड पार्टिकल्स जो रह जाते हैं। सो बेसिकली क्या हो जाता है, सब पार्टिकल्स तो सेडिमेंटेशन होने के बाद ऑलरेडी सेपरेट आउट ही हो जाते हैं खुद। अगर मैं फिल्ट्रेशन पेपर की या फिल्ट्रेशन की टेक्निक को यूज़ ही ना करूं एंड डायरेक्टली ही उन पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर लूं with the help of taking the second beaker. Suppose I am having this beaker. In this beaker there are sedimented particles and the solvent that is floating above. These two particles are separated. I am taking the next beaker and then I am just tilting the first beaker to the second beaker and मेरे पास जितना भी प्योर वाटर आ रहा है मैं उसको क्या कर रही हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ एंड बाकी का जो सेडिमेंट्स बच रहे हैं उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने रख दिया साइड पे। बाकी अगर उसमें थोड़ी सी वाटर ड्रॉपलेट्स रह भी गई तो मैंने हीट करके या इवेपोरेट करके या उसको सन ड्राई करके क्या कर दिया, उड़ा दिया। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक टेक्निक व्हाट इज अबाउट डिकेंटेशन। व्हाट इज डिकेंटेशन, नाउ इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं क्योंकि एज वी नो द components of the unstable mixture already separates with the help of gravitational influence decantation is the technique through which we can just separate out the solvent by collecting it into a separate beaker by tilting it with precautions. सेडिमेंटेशन की टेक्निक में ऑलरेडी जो है हमने मिक्सचर को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया। सेडिमेंटेशन की टेक्निक हम बेसिकली हैवियर पार्टिकल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं और जो फिल्ट्रेशन की टेक्निक है वो भी हम बड़े पार्टिकल्स के लिए ही यूज़ कर रहे हैं ताकि जो पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास आउट ना कर सके। तो अगर हमने सेडिमेंटेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर लिया पार्टिकल्स को तो फिर इट इज़ पॉसिबल दैट वी आर taking out the particles just simply by decantation. We are just separating out, we are just collecting the particles by the simple process of decantation. Now let me explain you this with the help of the diagram. This is a
sedimented mixture. This is the solvent, this is the sediment that is formed. What will I do in the case of decantation? Decantation के केस में मैं क्या करूँगी? I take up this beaker, I take up a separate beaker and I am just tilting up this beaker with precautions. I am just tilting up this beaker with precautions. The sediments are left in, because sediments की तो बिल्कुल नीचे वाली layer है वो already form हो चुकी है. Only the water is going to flow. And what happens in the next part is ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हो जाएंगी, सेपरेट आउट हो जाएंगी. यहाँ पे मेरे पास सॉल्वेंट कलेक्ट हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, इन द ब्लू बीकर आई एम हैविंग द सेडिमेंट्स. This is sediments and this is solvent. Okay, so I hope you got the things about decantation. जो भी important चीज़ें थी, I told you that all the things. Now students, एक चीज़ देखो, what was that? कि आपने देखा होगा लाल पानी होता है, that is we add the potassium permanganate into the water to clean the water. ठीक है. First of all above these things हमें पहले एक क्वेश्चन को डील करना है and that question is why is potassium permanganate used to clean water how does it works? यहाँ पे मैं लिखती हूँ this part is potassium, this is manganate, this is the manganate part. Thus the name of the chemical is potassium permanganate. This is potassium and this part MnO4 is permanganate. Basically this is MnO4 को जब हम सेपरेट करते हैं this is oxygen and this is magnesium manganese. This is manganese
एंड ऑक्सीजन एंड मैंगनीज क्या है, रिएक्ट करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, एंड व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स इज मिक्स्ड विद पोटेशियम इट फॉर्म्स द केमिकल नोन एज द पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है, सो दिस इज अबाउट पोटेशियम परमैंगनेट. Potassium permanganate is a great adsorbent. Potassium permanganate. We can write it as KMnO4. Please students ignore my spelling if there is a spelling mistake. So potassium permanganate is a great adsorbent. Adsorbent. What is an adsorbent? एडजॉर्बेंट वो चीज होती है, अ सब्सटेंस दैट कलेक्ट्स अप ऑल द सब्सटेंसेस ऑन इट्स सरफेस. क्या होता है कि जैसे आप क्या करो, चौक है, चौक को आप खुला छोड़ दो, तो चौक रेनी सीजन में आप चौक को खुला छोड़ दो, ह्यूमिडिटी होती है जिस मौसम में, तो चौक क्या होगा, ऊपर से गीला हो जाएगा. लेकिन जब आप गीली वाली लेयर निकाल दोगे तो नीचे से जो चौक होगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल साफ होगा. मतलब कि जो एड्जॉर्बेंट हुई है वो दैट इज ओनली अ सरफेस फिनोमिनन. आउटर सरफेस के ऊपर ही एक्शन होता है. सपोज करो दिस इज अ चौक, बेसिकली इट इज नॉट अ चौक, इट इज मार्कर. You can just suppose it as a chalk. चौक की सिर्फ ऊपर वाली जो लेयर होगी वो गीली हो जाएगी. तो एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फ़र्क होता है. एब्जॉर्प्शन बिल्कुल डीप प्रोसेस होता है, इंटरनल प्रोसेस होता है. एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है दैट इज अ सरफेस फिनोमिना. उसके सिर्फ सरफेस के ऊपर जो होंगे पार्टिकल्स अटैच होंगे. ठीक है, सो इट इज अ ग्रेट एड्जॉर्बेंट. इट एड्जॉर्ब्स. एडजॉर्ब्स, देखो मैंने एब्जॉर्ब्स नहीं लिखा है, एडजॉर्ब्स लिखा है. एडजॉर्ब का मतलब सरफेस के ऊपर सारी इम्प्योरिटीज को खींच लेता है. इट एडजॉर्ब्स ऑल द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ऑन द present in the water. The impurities along with, I'll not write the spellings now, मैं सिर्फ केमिकल फॉर्मूला लिख दूंगी. KMnO4 forms heavy particles and settle downs. Thus we get the pure water. We can collect this water with the help of decantation. By decantation, we can collect this water by the process of decantation. Now होता क्या है KMnO4? KMnO4 को हिंदी में फिटकरी बोलते हैं. ठीक है, फिटकरी के बारे में आपने सुना होगा. सो उसको क्या करते हैं, लाल पानी जो होता है दैट इज क्लोरीन. लाल पानी जो होता है वो होता है क्लोरीनेटेड वाटर. क्लोरीनेटेड वाटर है वो बर्तन साफ करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है. दैट इज द रेड वाटर, लाल पानी. क्लोरीन जो है दैट किल्स ऑल द germs. क्लोरीन किल्स all the germs, and potassium permanganate adsorbs all the impurities that are present in the water. ठीक है, so that is the application of sedimentation process, the decantation process. We can use this as some cleaning formulas. Okay students, तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, that was, let me rub this.
मैंने कल आपको एक कोएगुलेशन वाला पॉइंट करवाया था, उसमें एनटीएससी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज द हार्डी-क्लूज लॉ। जिन स्टूडेंट्स ने बोर्ड्स की तैयारी करनी है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्डी-क्लूज लॉ इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ द 11th क्लास। हार्डी-क्लूज लॉ है जो वो 11th क्लास का पार्ट है, बट स्टिल यू नो एनटीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मैं आपको ये इसकी इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन है वो करवा देती हूँ। हमने कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा था कि कोलॉइड्स के पास क्या होते हैं, कोलॉइड्स के पास चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। दीज चार्ज्ड पार्टिकल्स, जो भी चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दे रिपेल ईच अदर एंड दे प्रोवाइड द जिगजैग मूवमेंट। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास कोलॉइड्स के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कोएगुलेशन की। सपोज करो जिस चार्ज का वो कोलॉइड है उसके ऑपोजिट चार्ज का अगर इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड किया जाए तो क्या होता है, जो कोलॉइड है वो कोएगुलेट हो जाता है, एग्रीगेट्स फॉर्म कर जाता है, एंड एग्रीगेट्स क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड इन दिस वे आवर ब्लड कोएगुलेशन इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग ओनली, कि ब्लड हमारा जो है कोलॉइड है, उसमें अगर हम फेरस क्लोराइड डाल देते हैं तो वो क्या कर लेता है, एग्रीगेट्स या कोएगुलेट्स फॉर्म कर लेता है। What is Hardy-Close law? हार्डी-क्लूज ने एक लॉ दिया था, what was that law? Whenever an electrolyte is added to the colloidal solution, is added to the colloidal solution, it lets the colloid form aggregates and settle down. This process is known as coagulation. Aggregates are formed due to neutralization. न्यूट्रलाइजेशन एंड एक और चीज़ थी, एक और लॉ था जो उसने बताया था, एंड दैट थिंग वाज ग्रेटर द चार्ज मोर द कोएगुलेशन पावर। ग्रेटर द चार्ज more is the coagulating power. ठीक है स्टूडेंट्स, that was all about the Hardy-Close law. That is not all. This point is very very important. एंड इसके बेस पे ही जो है एनटीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये देखो अब ये लॉ एप्लीकेबल कैसे होता है। सपोज करो ये मेरे पास एक कोलॉइड है, ये कोलॉइड में मेरे पास सभी पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, उसमें मैं
इलेक्ट्रोलाइट डाल रही हूँ नेगेटिव चार्ज का, सपोज करो जो इलेक्ट्रोलाइट में डाल रही हूँ उसके अंदर 3 नेगेटिव वाला आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हैज द एबिलिटी टू कोएगुलेट टू 3 पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइड, है ना। तो इसकी कोएगुलेटिंग पावर क्या हो गई, ज़्यादा, मतलब कम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही कम क्वांटिटी के अंदर काम कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये किसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, हार्डी-क्लूज ने। तो इसको क्या नाम दिया गया, हार्डी-क्लूज लॉ नाम दिया गया। एंड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेटर द चार्ज मोर इज द कोएगुलेटिंग पावर, हार्डी-क्लूज गेव दिस लॉ, ठीक है। हार्डी-क्लूज ने ये लॉ दिया था, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द लॉ दैट हार्डी-क्लूज गेव। प्रैक्टिकली हार्डी-क्लूज लॉ को बताओ इन द एनटीएससी यू कैन बी गिवन अ सिचुएशन जिससे आपको बोला जाए कि हाँ इसको आप अरेंज करो, इसको आप बताओ, इस सिचुएशन को बताओ दैट व्हाई दिस हैपेंड। इसके बेस पे हम 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी। Arrange in the order of coagulating, more coagulating power to an colloid. Arrange in the order of more to less coagulating power of an colloid. ठीक है। द फर्स्ट आयन दैट दे गेव यू इज Al3+. द सेकेंड आयन दैट दे गेव यू इज Na+, एंड द थर्ड आयन दैट दे गेव यू इज Ca2+. अब हमें मोर टू लेस के ऑर्डर में जाना है, मतलब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, मोर टू लेस. Now, what does the Hardy-Close law tells? Greater the charge, more is the coagulating power. सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है, सबसे ज़्यादा Al3+ का, इसको हम फर्स्ट नंबर पे रखेंगे. उससे नेक्स्ट 2+, ठीक है. 3+ इज मोर, 2+ इज लेस, इसको रखेंगे हम सेकेंड पे. सो द ऑर्डर इज, or the correct answer is Al3+, Ca2+, and Na+. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन, दैट इज two medical students were experimenting on the blood coagulating chemicals. ठीक है. स्टूडेंट ए experimented with NaCl. Student B experimented with AlCl3. After the experiment, they saw the blood of student A was less coagulated. Why?
NTSC के अंदर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे बिकॉज NaCl बिकॉज ऑफ हार्डी-क्लूज लॉ, या कोई और साइंटिस्ट का नाम दे दिया बी ऑप्शन में, किसी और ऑप्शन में किसी और साइंटिस्ट का नाम दे दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसेप्ट कौन से टॉपिक है, हार्डी-क्लूज का कंसेप्ट है। हार्डी-क्लूज ने कंसेप्ट क्या दिया था कि मोर द चार्ज मोर इज द कोएगुलेटिंग पावर। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर वुड बी बेसिकली बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ NaCl consists of Na plus ions and AlCl3 consists of Al3 plus ions. According to Schlu's law, more the charge more coagulating power. Thus AlCl3 is a stronger coagulate. Coagulate. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली हमने सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में किया। नेक्स्ट आई केम अप विद द क्वेरी ऑफ द हार्डी-क्लूज लॉ, एंड हार्डी-क्लूज लॉ एज 9th की NCERT में इंक्लूडेड नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से क्या हो गया, ये स्किप हो गया। बट टुडे मैंने ये कवर अप करवा दिया है आपको। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आई होप यू अंडरस्टूड इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।